وقت ہے کہ ہم خدا کے بندہ خدا کے خادم بھائی سلیمان سے خدا کے کلام کی آواز کو سنیں جو خدا نے آج اپنے بندہ کو مقرر کیا کہ وہ ہمارے درمیان خدا کی زندہ آواز کو شیئر کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ کو محفوظ کریں کہ بھائی سلیمان پاکستان سے سنوائیں اور خدا کی آواز کو ایک بار پھر خدا یسوع مسیح کے خوبصورت انتہائی معتبر اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ تشریف رکھیے۔ جب ہم آئے اور پادری صاحب نے بڑا پرجوش ہمیں ویلکم کیا، ہمیں خوش آمدید کہا، تو میرا دل نہایت خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اور پادری صاحب نے کہا کہ یقیناً جو خدا کے خدام ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں، لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے بڑھ کر اپنے کلام کو عظمت بخشی ہے۔ آمین۔ تو اگر آپ تالیاں بجانا چاہتے ہیں تو پلیز ابھی بجائیے، جانا چاہتے ہیں اتنی بجائیے اس کلام کی عظمت میں۔ یہ وہ کلام ہے جو ساری تعظیم کے لائق ہے، یہ وہ کلام ہے جو ساری عزت کے لائق ہے، اور کلام کی عزت اور کلام کی تعظیم اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آمین۔ تو خداوند ساری کلیسیا کو بہت زیادہ برکت دے۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، سب سے بڑھ کر خداوند کے لیے اور اس کی ساری نعمتوں اور برکتوں اور بخششوں کے لیے کہ خدا اپنے خادموں کو اسیروں کی مانند گشت کرواتا ہے اور جگہ بجگہ اور مختلف طریقے سے خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر بشپ ڈومنک جاوید صاحب کا، جن کی یہ خوبصورت کلیسیا سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور شکر گزار ہیں کہ بشپ صاحب نے ہمیں یہاں پر آنے کی اجازت دی تاکہ ہم آ کر خداوند کے کلام کی چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر الیاس یعقوب صاحب کا، جن کی وساطت سے آج ہم آپ کے درمیان میں ہیں۔ سو ان ساری باتوں کا جلال ہمارے خداوند کو ملے۔ آئے ہم زوردار تالیاں بجائیں۔ پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا پرستش کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں اور خدا سنتا ہے نا؟ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں خدا سن رہا ہوتا ہے، اب خدا بولنے والا ہے، ہم سنیں گے۔ آمین۔ کتنے لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ پریز دی لارڈ۔ آج ہم کچھ وقت کے لیے ایک مضمون ہے جس پر ہم غور کریں گے، اور یہ جو مضمون ہے یہ خدا کے دل کی دھڑکن ہے، اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کے دل کی دھڑکن کیا ہے اور خدا کس طرح سے پوری دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ میرا مضمون ہوگا اقوام عالم کے لیے خدا کا منصوبہ نجات، دنیا کے لیے خدا کا منصوبہ نجات۔ آئیں خداوند کی زندگی بخش آواز کو سننے کے لیے اس کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر ہم 24ویں آیت تک پڑھیں گے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پس جو لوگ اس مصیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے جو اسٹفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے پھرتے
फिनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रुसी और कुरीनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावंद का हाथ उन पर था। खुदावंद का हाथ उन पर था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची, और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ। कौन खुश हुआ जी? मुकद्दस बरनबास खुश हुआ, और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद से लिपटे रहो, दिली इरादे से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था, और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत है। ये हवाला जो आज हम इमाल की किताब में से देख रहे हैं, इमाल की किताब कलीसिया की पैदाइश की किताब है। बाइबल मुकद्दस में एक पैदाइश की किताब है जो बिल्कुल आगाज में आती है। वहां पर कायनात की तख्लीक का जिक्र है कि खुदा ने किस तरह से कायनात को तख्लीक किया, और कैसे कैसे खुदा ने कायनात को तख्लीक किया। मगर जब हम इमाल की किताब पढ़ते हैं और उसके दूसरे बाब के आगाज ही में हम एक बहुत खूबसूरत वाकया देखते हैं, जो कि ईद पेंतिकोस्त का वाकया है, जो कि रूहुल कुद्स के नज़ूल का वाकया है, और बाप के उस वादे की तकमील है जो उसने अपने लोगों के साथ किया था। वहां से कलीसिया की पैदाइश हुई, वहां से कलीसिया का आगाज हुआ। इसलिए इमाल की किताब को कलीसिया की पैदाइश की किताब भी कहा जाता है। और जो लफ्ज कलीसिया है, ये बड़ा खास लफ्ज है। आज पता नहीं हम इसको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट और मिस अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन ये बहुत खास लफ्ज है। ये यूनानी लफ्ज एक्लीसिया से निकला है, और जिसका मतलब है ईमानदारों की जमात। क्या मतलब है? ईमानदारों की जमात, चुने हुए लोगों की जमात, खुदा के बरगजीदों की जमात, रूहुल कुद्स की कुदरत और उसकी कुव्वत से मामूर लोगों की जमात, आसमानी रोया रखने वाले लोगों की जमात। ये आम जमात नहीं है, ये खास खुदा के चुने हुए लोगों की जमात है, और आसमान की बादशाही की मुनादी करने वाले लोगों की जमात, खुशखबरी सुनाने वाले लोगों की जमात, और रूहानी नज़्म व ज़ब्त का अमली मुज़ाहरा करने वाले लोगों की जमात है। मैं बताना चाहता हूं कि मिली जुली भीड़ कलीसिया नहीं है। चर्च के अंदर आने वाला हर एक शख्स कलीसिया नहीं है।
कलीसिया खुदा के बरगज़ीदों की जमात का नाम है। कलीसिया खुदा के चुने हुए लोगों की जमात का नाम है। और कलीसिया उन लोगों की जमात का नाम है जिन लोगों ने अपने जामे बर्रे के लहू से धो लिए हैं। आमीन। जिनके जामे बर्रे के पाक और बेऐब खून से धुल चुके हैं, ये उन लोगों की जमात है। और जब मेरा और आपका मसीहा नजात दहिंदा इस दुनिया में वापस आएगा, तो वो उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा जिन्होंने अपने जामे उसके पाक और बेऐब लहू से धो लिए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि वो जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। वही होंगे जो मेरे बाप की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। इसलिए इमाल की जो किताब है, ये हमारी तवज्जो एक खास समत की तरफ लगाती है कि हमने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है और हमारी उस डायरेक्शन की मंजिल क्या है और उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इस हवाले में हम देखते हैं कि जब मुकद्दस स्टेफनस को शहीद किया गया, तो वहां पर जो कलीसिया उस वक्त मौजूद थी, वो बड़ा गंदा हो गई, वो बिखर गई और वो मुख्तलिफ इलाकों में जिनका यहां पर जिक्र हमने पढ़ा है, वो वहां पर चले गए। कुछ लोग फनीके को चले गए, कुछ लोग कुप्रुस को चले गए, कुछ लोग इंताकिया में चले गए और वहां पर वो जाकर खुदावंद की खुशखबरी दूसरों को सुनाने लगे। लेकिन वहां पर एक मसला था कि वो सिर्फ अपने यहूदी जो भाई थे उन्हीं को खुशखबरी सुनाते थे। जिंज आज साड़ी पाकिस्तानी कलीसिया जो है, ਅਸੀਂ पहुंचो अपने ਨੂੰ सुनाई जाने, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बुरी बात नहीं है कि हम अपने जो बहन भाई हैं, हमारी जो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हम उसको एम्पावर करें, हम उसको कलाम की सच्चाइयों को उन पर बावर करवाएं, उनको कलाम की सच्चाइयां बताएं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे बढ़कर हमें बाहर भी देखना है, क्योंकि खुदा का मंसूबा निजात ये अक़वाम आलम के लिए है, किसी एक कौम के लिए नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह वो सिर्फ मसीहियों को निजात देने के लिए नहीं आए, बल्कि पूरी दुनिया को निजात देने के लिए आए हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने मसीहियों से, किनसे? दुनिया से। और दुनिया में बहुत सी अक़वाम हैं, बहुत से नस्ली ग्रोह हैं, बहुत से लसानी ग्रोह हैं, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले हैं। तो मेरे और आपके खुदा का जो मंसूबा है वो तमाम अक़वाम के लिए है और वो सारी कौमों के लिए बोझ रखता है। लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी, ये भी जिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया ना, इसका मतलब है कि ये दरवाजा सबके लिए खुला है। जो कोई इसमें दाखिल होना चाहे वो हो सकता है, क्योंकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो जो खुदा का मंसूबा नजात है वो अक़वाम आलम के लिए है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इब्तदाई कलीसिया के लोग थे, इब्तदाई ईमानदार थे, जब वो दूसरे शहरों में गए हैं तो वो वहां पर अपने ही जो यहूदी भाई थे उनको वो खुशखबरी सुनाने लगे। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने, जो यूनानी लोग थे, जो गैर कौम से लोग थे,
उनको भी खुदावन की खुशखबरी सुनाना शुरू की। और यहाँ पर लिखा है कि वो लोग जो उन यूनानियों को खुदावन यीशु की खुशखबरी की बातें सुना रहे थे या सुनाने लगे, तो उन लोगों पर खुदावन का हाथ था। खुदावन का हाथ उन लोगों के ऊपर था और उनके वसीला से बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावन की तरफ रजू हुए। बहुत से लोग ईमान ले आए जब मसीह की खुशखबरी गैर अक़वाम तक पहुंचाई गई। फिर बाज़ लोग कहते हैं कि हम कहां से शुरू करें, हम कहां से लोगों को रीच करना शुरू करें। तो हम जो OMS हैं, हम लोगों की मदद करते हैं कि जहां पर खुदा ने आपको रखा है, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका स्कूल है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो आपका कॉलेज है, वो आपका कोई बाजार है, कहीं पर भी आप मौजूद हैं, आप खुदा के मिशनरी हैं। आमीन। आपके लिए वही फील्ड है जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर की है। आप वहां पर खुदा की मसीह यीशु की उस खुशखबरी को शेयर कर सकते हैं। प्लीज आपस में जो हम करते हैं, मसीह की खुशखबरी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसको भी जारी रखिए, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर हमें मौका मिले, हम मसीह की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाते रहें। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका खून कलीसिया की पनीरी है और कलीसिया का बीज है। और ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जहां जहां पर शहीदों का खून बहाया गया, वहां से नई कलीसियाओं ने जन्म लिया। आमीन। तो आपका जो खून है, अगर आपका खून मसीह की खातिर बहा, तो आप याद रखिए, एक नई कलीसिया का आगाज वहीं से होगा जहां पर आपका खून बहाया जाएगा। तो इसलिए डरे ना, घबराए ना, परेशान ना हो इंजील को सुनाने से। मुकद्दस पौल कहता है, मैं इंजील से शर्माता नहीं। वो शर्माता नहीं है, वो जहां पर भी जाता है वो मसीह की खुशखबरी सुनाता चला जाता है। मसीह ने हमें इस जमीन पर नूर और नमक की मानंद रखा है और उसने कहा कि तुम जमीन के नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। We are the salt of the earth. We are the light of the world. हमें ये बात जाननी है और इसको अपने दिलों में रखना है और मजबूती से थामे रखना है कि मसीह यीशु ने मुझे कहा है कि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। इसलिए हम जहां पर भी हैं, हम स्कूल में हैं, हम कॉलेज में हैं, हम अपनी वर्क प्लेस पे हैं, हम कहीं पर भी हैं, हमारी रोशनी आदमियों के दरमियान में चमकनी चाहिए। और आगे लिखा है कि तुम्हारे नेक और अच्छे कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। सो अगर आप हकीकी कलीसिया बनना चाहते हैं और खुदा के उस मंसूबे निजात का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको जो कलीसिया का हकीकी मुकाशफा है उसको समझने की जरूरत है। मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये ईमानदारों की जमात है, ये खुदा के चुने हुए लोगों की जमात है, ये खुदा के बरगज़ीदों की जमात है। हमारा खुदा कौमों का खुदा है, वो कबीलों का खुदा है, वो उम्मतों का खुदा है और वो सारी कौमों से और सारी उम्मतों से प्यार करता है। जब हम अनजील अरबा में, चारों अनाजील में हम इरशाद आज़म देखते हैं, तो वहां पर इसी बात पर जोर दिया गया है कि हम कौमों तक रसाई हासिल करें। मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसके 16वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। कहां पर जाकर? सारी खलक के सामने, तमाम दुनिया में जाकर इंजील की
मुनादी करो। और मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। हमारा खुदावन हमारे साथ है। प्लीज अपने दिल पे हाथ रखिए और कहें, खुदावन मेरे साथ है, खुदावन मेरे साथ है, खुदावन मेरे साथ है। हर रोज हमें अपने आप को ये बात याद करवानी है, रिमाइंड करवानी है कि मेरा खुदावन जो जिंदा है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और जिसने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया और जो आज आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है, वो जिंदा है और वो मेरे साथ है। आमीन। कोई मुर्दा तो किसी के साथ नहीं हो सकता, वो जिंदा है, इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। सो खुदावन हमारे साथ है। जब हम उसका मिशन लेके, उसका मंसूबा लेकर निकलते हैं, तो वो मंसूबा दे के पीछे नहीं हट जाता। जिसका मंसूबा है वो मंसूबा दे के पीछे नहीं हटता, वो साथ साथ रहता है। और उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक, किसी एक डिकेड के लिए नहीं, किसी एक सदी के लिए नहीं, बल्कि उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। सो खुदावन हमारे साथ है और इस बात को हमने हर रोज अपने लिए जानना है। अमाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा। और आगे फिर दूसरे बाब में हम देखते हैं कि जब वही शागिर्द जो पहले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो दूसरे जो उनके यहूदी भाई थे, उनसे वो डरे हुए थे। यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद एक बड़ा खौफ व हरास शागिर्दों के ऊपर तारी था और वो एक जगह पर वो छुपे हुए थे। लेकिन जैसे ही रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, वही डरे हुए शागिर्द उठकर खुदावन की मुनादी करने लगे। और पतरस जो उन सब का लीडर था उस वक्त में, उसने जब पहला ही वाज किया तो उसमें 3000 लोगों ने मसीह को कबूल कर लिया। आमीन। तो जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो हम कुव्वत पाते हैं और फिर पूरी दुनिया में हम उसके गवाह बनते हैं। इसी तरह से कि रूहुल कुद्स से मामूर शख्स यरूशलेम की कलीसिया से अंताकिया में भेजा गया, जिसका नाम बरनबास था। इस हवाले में हम पढ़कर आए हैं कि मुकद्दस बरनबास को अंताकिया में भेजा गया और वो वहां पर पहुंचकर खुदा के फजल को देखकर खुशी से भर गया। खुदा के फजल को देखकर कि किस तरह से खुदा का फजल गैर कौम के लिए भी है। वो समझते थे कि सिर्फ खुदा यहूदियों का खुदा है, खुदा सिर्फ अपनी चुनी हुई कौम का ही खुदा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दूसरी अक़वाम भी खुदा के फजल को एंजॉय कर रही हैं और मसीह की खुशखबरी पर ईमान लाकर वो उसके खानदान का हिस्सा बन रही हैं, तो वो खुदा का खादिम उस खुदा के फजल को देखकर खुशी से भर गया। आज कितने लोग हैं जो दूसरों को मसीह के पास आता हुआ देखकर खुशी से भर जाते हैं? प्लीज अपना हाथ दिखाइए जिनको बड़ी खुशी होती है कि कोई गैर कौम से शख्स मसीह की आगोश में आ चुका है, कोई भटका हुआ शख्स, कोई खोया हुआ शख्स अपने गुनाहों को छोड़कर मसीह की आगोश में आ चुका है। हमें बरनबास की तरह खुश होने की जरूरत है। मगर हमारा अलमिया यह है, हम किसी गुनाहगार, किसी शराबी को या और तरह के घिनौने काम करने वाले शख्स को जब हम चर्च में बैठा हुआ देखते हैं
تو ہم کہتے ہیں کہ جی 100 چوہا کھا کے بلی حج میں چلی گئی ہے نا. ساری عمر نے گناہوں کی گزار لی ہونے رب رب. بائبل میں لکھا ہے کہ آج نجات کا دن ہے, آج ہی قبولیت کا وقت ہے. اور بعض کی کتاب میں لکھا ہے, وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمین پر ہر ایک کام کا وقت ہے. پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے, مرنے کا بھی ایک وقت ہے, بیج بونے کا بھی ایک وقت ہے, اور فصل کاٹنے کا بھی ایک وقت ہے. یاد رکھیے نجات پانے کا بھی ایک وقت ہے. آمین. اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے میں بھی مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ وہی تاج حاصل کرتا ہے جس کا ذکر یہاں پہ اس آیت میں ہوا ہے, زندگی کا تاج. اس لیے ہم لوگوں کو انکریج کریں جب وہ مسیح کی طرف آئیں, ڈسکریج نہ کریں. ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, ہم ان کا جوا اٹھانے والے ہوں, نہ کہ ان پر اور زیادہ بوجھ ڈالنے والے ہوں. برنباس اس خدا کے فضل کو دیکھ کر کہ غیر اقوام خداوند کے پاس آ رہی ہیں, وہ خوشی سے بھر گیا اور وہ خداوند کی شکر گزاری کرنے لگا, اور وہاں پر وہ نصیحت کرنے لگا. ان کو انکریج بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو نصیحت بھی کر رہا ہے. اور نصیحت کیا کر رہا ہے کہ دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو, دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو. خداوند کا منصوبہ نجات میرے اور آپ کے لیے ہے. خداوند کا منصوبہ نجات پوری دنیا کے لیے ہے. آئیں ہم اس کے منصوبے میں شامل ہوں, اور جو یسوع مسیح کی رویا ہے ہم اس کی رویا کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. ہماری جو او ایم کی رویا ہے وہ 2 تماثیل کے گرد گھومتی ہے جو کہ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں ہیں. ایک کھویا ہوا سکہ اور ایک کھوئی ہوئی بھیڑ. کھویا ہوا سکہ ایک گھر میں کھو گیا تھا, اور اس عورت نے اپنے گھر میں جھاڑو لگایا, اور جب وہ سکہ اس کو مل گیا تو اس نے خوشی کی, اپنے ہمسایوں کو بلایا اور ایک بڑی خوشی اور ایک بڑی ضیافت اس نے کی. بہت سے سکے ہیں جو ہمارے اپنے گھروں میں کھوئے ہوئے ہیں, بہت سے سکے ہیں جو ہماری اپنی کلیسیاؤں میں کھوئے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہیں, بہت سے ٹین ایجرز ہیں, بہت سے نوجوان ہیں, بہت سی ہماری بہنیں ہیں, بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں لیکن وہ کھوئے ہوئے ہیں. آئیں ان کھوئے ہوئے اس کھوئے ہوئے سکے کی طرح ہم ان کو ڈھونڈ نکالیں اور ان کی بازو پکڑ کے, ان کا ہاتھ پکڑ کے مسیح کے ہاتھ میں دے دیں اور خوشی منائیں اور شادمانی کریں. اور پھر ایک بھیڑ تھی جو جنگل میں کھو گئی, جو دور دراز کے علاقے میں کھو گئی. یہ وہ دوسری اقوام ہیں جو کھوئی ہوئی ہیں, جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. آئیں اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح ان کو بھی ڈھونڈ نکالیں, اور جب وہ ہمیں مل جائیں تو ہم ایک بڑی شادمانی کریں جس طرح سے مقدس برناباس نے کیا. اور یاد رکھیے جب ایک شخص اس زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر بھی لاکھوں فرشتے خداوند کی پرستش کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. تو جب آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے تو زمین پر کیوں نہ منائی جائے. تو آئیں ہم ان کھوئے ہوئے سکوں کو جو گھروں میں کھوئے ہوئے ہیں, جو کلیسیاؤں میں کھوئے ہوئے ہیں, ان کو ڈھونڈ نکالیں, مسیح کے پاس لے کے آئیں, اور وہ دور دراز کے علاقوں میں جو بھیڑیں کھو چکی ہیں ان کو بھی ڈھونڈ نکالیں اور ان کو مسیح کے پاس لے کر آئیں اور ان کا تعلق مسیح کے ساتھ استوار کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے.